हेलो माय फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग एंशियंट इंडिया को कवर करने वाले हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर जो कि रिलेटेड है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंटरमीडिएट क्लास लाइक 11th एंड 12th क्लास। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर and the name of this chapter is bricks, beads and bones. And we will find that what is the similarities and what is the difference and which type of technology used during Indus Valley civilization and what is archaeological evidences and which type of distinctive artifacts in the used in Harappan or Indus Valley civilization, as well as script. And still we know very well that scripts of Indus Valley civilization is not deciphered because it is very different script, and it is also different like different from Devanagari and other script. So right now we will start our chapter. You can see here that Harappan seal. This is the figure of Harappan seal, and in this figure there is a showing a one horn rhino something, and it is very prevalent in Indus Valley civilization due to finding a number of Harappan seals which have image of one horn unicorns. One horn rhino, sorry. And you can find here that made of stone called स्टेटाइट. और ये जो सील बना होता था ये स्टेटाइट का बना होता था. सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स मीन्स लाइक इमेज and a decorative image which is used at that time. And you can also find that and signs from a script that remain undeciphered. As we know very well, the Indus Valley civilization's script is undeciphered, and because we don't know that our archaeologists don't identify that which type of script it is used. But most of the things which is also discovered by archaeologists, saying that it may be there is possibility that they used Bustrop hidden script, which is writing from left to right, right to left, means it is also like structure of yes. You can start from here and end here, start from here, start end here. Okay everyone, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा. These are very important image. Whatever is right in this one, this is important because in maybe there is possibilities that in exams question may be asked from this place. And we will move in next one. This is the map of widespread areas of Indus Valley civilization. And we can also observe one thing, that here these are means whatever is mentioned in this figure, they tell us about prevalent city at Indus Valley civilization time. You can see here Mohenjo-daro, Amri, Balakot, Chanudoro, Kotdiji, Ganeriwala, Satluj. We can identify here that most of the nearly 60 to 70% sites of Indus Valley civilizations right now in Pakistan, and it's a very little part is situated in India, including Jammu Kashmir, Punjab, Haryana, Gujarat, as well as Maharashtra and Uttar Pradesh. So you can find a number of places during Indus Valley civilizations, like Manda right now is situated in Jammu Kashmir. Rakhi Gadi, that is also that is situated in Haryana.
Banawali is also situated in Haryana. Kalibangan, that is in Rajasthan, as well as you can also find here like Lothal, Rangpur, Nageshwar, Dholavira, and Rangpur. These are the some places in Gujarat, and they are also part of Indus Valley civilizations. Some of them are very important due to the uh, one history one histo- uh, one historiographer commenting about these places that some places are premature Harappan sites, some are mature Harappan sites, and some are later sites. So you can identify these things with present condition to to finding some script, coins, mounts, etc., as well as citadels. Beginnings, as most of the historians giving a number of time and things to related Indus Valley civilizations, but one which is very major, very important timeline given by coming on a conclusion by historians, that is like Harappan culture from early farming communities dated around 7000 BCE. But one of the most important things which is mentioned in R.S. Sharma in ancient book, like Indus Valley civilization's period was from 3200 to till 1750 BCE, nearly more than above than 1500 BCE, before the Christ era. So here are some things which is mentioned. Harappan settlement. So far, more than 2000 Harappan archaeological sites have been discovered in Indian subcontinent. Most of the sites are found in located between the Indus and Saraswati River. Saraswati River is a imagined river, and most of the geologists and as well as other thinking about that maybe there is possibilities Ghaggar was the ancient name of Saraswati, and it is also, and sorry, she was also her location was in maybe right now in Rajasthan, and due to dried of Saraswati river, there were a number of catastrophic events like disasters and famine, and these places were displaced and people maybe died, something like that. और अगर ऐसे ही बात मतलब रेन नहीं हो रहा है और कुछ मतलब चीज़ें लोग रेन नहीं होगा या फिर नदी का पानी सूख गया, वाटर ड्राई हो गया, तो फिर जाहिर सी बात है मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी, और जिसकी वजह से सिटीज़ एज वेल एज जो रूरल और अर्बन पॉपुलेशन होगा वो अफेक्ट होगा, और मे बी चांसेस है कि वो वाइप्ड आउट कर जाए। आगे बढ़ते हैं हम चीज़ों को देखते हुए, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज। इफ़ यू लुक मैप 1 and 2 you will notice that the mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by the early Harappan culture। ये सब चीज़ें आप इसको देख लीजिएगा, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आप खुद भी पढ़ेंगे तो बेटर ही रहेगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, थोड़ा ऊपर चलते हैं। Grains found in Harappan sites include wheat, barley, lentil, chickpea and sesame। आप इसको मार्क भी कर लेंगे तो बेटर ही रहेगा, बिकॉज व्हाट हैपन राइट नाउ देयर इज ए ट्रेंड इन यूपीएससी एग्जाम्स एज वेल एज अदर एग्जाम्स में भी कैन बी आस्क दैट व्हाट इज द नेटिव क्रॉप इन इंडिया। सो आप इसको मार्क कर सकते हैं, wheat, barley, lentil, chickpea and sesame, these are the native crop of India, while papaya, guava, chilies, potatoes and pineapple, these are the imported crops which is bringing by Portuguese etc. from न्यू वर्ल्ड इन ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड कौन से हैं? इंडिया जैसे ईस्ट वाले, ईस्ट इंडीज जो
ईस्ट इंडीज मतलब जो एशियन सब कॉन्टिनेंट में जो ईस्ट इंडीज कंट्रीज हैं उनको ओल्ड वर्ल्ड बोला जाता है। और न्यू वर्ल्ड कौन से हैं? लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज है, मैक्सिको और इसके नीचे जितने भी सारे कंट्रीज है, ब्राज़ील है, इसके बाद आपका वियतनाम है, सॉरी ब्राज़ील है, इसके बाद आपका चिली है, अर्जेंटीना है, और जितने भी ऊपर के साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका, मैक्सिको के नीचे जितने भी कंट्री जो दे आर न्यू वर्ल्ड, और वो उनको लैटिन अमेरिका भी बोला जाता है। तो आप इसको ऐसे भी आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात, फाइंड्स ऑफ राइस आर आल्सो रिलेटिवली रेयर। अच्छा, यहाँ पे रोपड़ नामक प्लेस से, मतलब रोपड़ जो प्लेस है वहाँ से चावल के वहाँ से राइस के भी कुछ एविडेंस मिले हैं। वहाँ पे हस्क मिला उसका, और भी मिले हैं उत्तर प्रदेश के यूपी के प्रयागराज के नियर कोल्डीवा नामक प्लेस से भी, वहाँ से भी हस्क मिले हैं। किसके? चावल के, मतलब राइस के। आप यहाँ पे कुछ और भी प्लेसेस देख सकते हैं, अर्ली हड़प्पन प्लेसेस हैं ये, जैसे सिसवाल हो गया, कोट दीजी हो गया, आमरी हो गया, दमाब सादात हो गया। अच्छा, सोती सिसवाल एक कल्चर भी है जो राजस्थान में काफ़ी प्रिवलेंट रहा है ना, अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन पीरियड में। और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो एनिमल बोन्स। हार्सेस के बारे में काफ़ी डिबेट रहता है कि हार्सेस की भी में भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हार्सेस का भी यूज होता था। यहाँ से सुरकोतदा एक प्लेस है, और बनवाली ये एक अनदर प्लेस है। इन दो प्लेसेस से हार्सेस के भी कुछ रिमेन्स मिले हैं। वहाँ पे आप बोल सकते हैं उनके कुछ रिमेन्स मिले हैं, जिसके बेसिस पे ये लोग हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि मे बी देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्सेस का भी यूज होता होगा। आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं इसमें। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बोअर, डियर एंड घड़ियाल आर आल्सो फाउंड। वी डू नॉट नो वेदर द हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्व्स आर ऑब्टेन मीट। मतलब इसमें ऐसा थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल है कि हड़प्पन जो पीपल जो लोग थे इन एनिमल्स का शिकार, मतलब हंट इसलिए करते थे कि ताकि वो इनके फिश या मीट को कंज्यूम कर सके, या फिर किसी और चीज़ में इनको लगा सके। मतलब मे बी दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। यहाँ पे फिश और फाउल का भी कुछ बोन्स मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस में। जाहिर सी आप इसको समझ सकते हैं, दीज आर वेरी जनरल थिंग्स दैट वाटर होगा तो वाटर में तो फिश तो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, मे बी तो देयर कैन बी। आर्कियोलॉजिकल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में आप देखोगे, जैसे आज के समय में सीड को क्या करते हैं, जैसे राइस, अगर हमें राइस का प्लांटेशन करना है तो सबसे पहले हम सीड को जर्मिनेट करते हैं, इसके बाद उसके प्लांट को उखाड़ के हम फिर प्लांटेशन करते हैं। लेकिन मे बी देयर कैन बी लाइक हियर यू कैन टेराकोट आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ प्लाउ फील्ड एट कालीबंगन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आप देखोगे प्लाउ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिली हैं। जैसे बनवाली से भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पे जिसके माध्यम से सॉइल को डिग किया जाता था। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सेट्स ऑफ फरोज मिले हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, सजेस्टिंग दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वेयर ग्रोन टुगेदर। मे बी देयर कैन बी पॉसिबिलिटी दे यूज different type of furrows to cultivating the land or plowing the land. We can move in next one, that archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting. Maybe these are some tools which are discovered by archaeologists, and
you can see here these are copper tools. One thing is very important in this one, that they you can see here, it is possible that ancient canals silted up long ago. अच्छा, कैनाल सिस्टम भी उस समय था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो हमें इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है, धोलावीरा से मिलता है, वाटर रिजर्वायर के रूप में। तो एक बार ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है वाटर रिजर्वायर के ऊपर में, धौलावीरा से। तो आप इसको आप एक बार देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो एक प्लान्ड अर्बन सेंटर। अच्छा, जैसे अर्बन सेंटर का ओरिजिन कैसे होता है, मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस किया, जैसे मान लीजिए आपने राइस प्रोड्यूस किया, अब वो आपके कंज्यूम से मतलब कंजप्शन से ज़्यादा है। जैसे आप पूरे साल भर में आप मान लीजिए 20 kg आप राइस कंज्यूम करते हैं, और आपने राइस जो है आपने उसका प्लांटेशन किया और मे भी अच्छा फसल रहा और मोर देन 100 kg के समथिंग प्रोड्यूस हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे साल भर में आप 20 kg राइस ही कंज्यूम करते हैं, आप और आपकी पूरी फैमिली। तो आप 80 kg राइस को क्या करोगे, बाज़ार में सेल करोगे, मार्केट में। तो ये जो आपका सरप्लस है ना, ऐसे कर करके मतलब यू आर इंडिविजुअल। अब ऐसे ही नियरली अगर 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, तो सबके पास 80 किलो या 70 किलो 60 किलो समथिंग होगा जो अपने कंजम्पशन से बच जाए चीज़ें। आप उसको क्या करते हो, मार्केट में सेल करते हो। तो ऐसे ऐसे ही चीज़ें क्या होती है, आप एक जगह एक सरप्लस सेंटर बना लेते हो, कलेक्शन सेंटर बन जाता है, जहाँ पे सभी लोग आएंगे और अपने जो कमोडिटीज़ है, जो क्रॉप है, जो सरप्लस क्रॉप है, उसको आप क्या करोगे, वहाँ पे सेल करोगे। और फिर ऐसे ही प्लेसेस का क्या होगा, जो मे भी हो सकता है दैट प्लेस वाज अर्लियर सिटी, अर्लियर इन विलेज समथिंग करके कुछ हो, लेकिन एक सेंटर में होने की वजह से कलेक्शन सेंटर हो गया। और यही जो कलेक्शन सेंटर था इमर्ज होके एक बड़े किसके रूप में हो गए, सिटी के रूप में हो गए। जैसे आज के समय आप देख सकते हो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, है ना, जितने भी ये बड़े बड़े प्लेसेज हैं, ये क्या है, दीज आर सम जस्ट लाइक कलेक्शन सेंटर। यहाँ पे लोग आते हैं और अपना मतलब जो उनके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, सरप्लस चीज़ें, उसको वहाँ पे क्या करते हैं, सेल करते हैं। और इसके बाद जो अदर जो इनको नीड्स होती है, फिर वहाँ से क्या करते हैं, उन चीज़ को वहाँ से वो रिसीव करते हैं। तो जस्ट लाइक ऐसे ही चीज़ों का डेवलपमेंट होता है और ऐसे ही इकोनॉमी रन करती है। ये सब चीज़ें हम इकोनॉमी में देखेंगे, बस हम जस्ट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए चीज़ें बता रहा था। मोहनजोदड़ो प्लान्ड अर्बन सेंटर, परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। लेट अस लुक एट सम such centers like Mohenjo-daro is the most well-known site. The first site to be discovered was Harappa. Harappa was discovered by whom? Dayaram Sahni. And Mohenjo-daro was discovered by Rakhaldas Banerjee. And you can see here, this was the structure of Mohenjo-daro. That was the planned city. अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो सिटाडेल। यहाँ पे जैसे लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार, जो हायर क्लास था वो यहाँ पे रहता था, और ये लोअर टाउन में जनरल पब्लिक रहती थी। यू कैन सी हियर। ओके, वी विल मूव इन नेक्स्ट वन। Although Harappa was the first site to be discovered, it was badly destroyed by brick robbers. अच्छा, क्या हुआ था कि 1875 में वहाँ पे रेलवे का कुछ वर्क हो रहा था। एज वी नो वेरी वेल कि इन 1854 में इंडिया में क्या हुआ था, मुंबई से थाने के बीच में नियरली 20 किलोमीटर्स क्या हुआ था, ट्रेन चलाई गई थी, है ना। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इन इंडिया दैट ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड। सो यहाँ पे जब 1875 में यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट 100 माइल्स ऑफ द रेलवे लाइंस बिटवीन लाहौर एंड मुल्तान, दस मेनी ऑफ द एंशियंट स्ट्रक्चर ऑफ द। और यहाँ पे क्या हुआ कि जब ब्रिक्स की कुछ कमी हुई, लेगनाज हुए, तो यहाँ पे जो वर्कर थे और जो लोग थे, तो वो क्या किए,
एंशियन जो यहाँ पे जो रिमेन्स थे, है ना, जो यहाँ पे प्लेसेस था, वहाँ से उठा के लाना शुरू कर दिए। तो फिर धीरे धीरे 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, नोटेड, इन्होंने माइंड मतलब अपने माइंड किया कि अमाउंट ऑफ ब्रिक टेकन फ्रॉम एंशियंट साइट वाज इनफ टू लिव ब्रिक्स फॉर अबाउट 100 माइल्स अप। तो आप ऐसा देख सकते हैं यहाँ पे कि, और इन्होंने ही फर्स्ट उसको देखा, बट इन्होंने उतना नोटिस नहीं किया। बाद में 1920 के समथिंग दयाराम साहनी ने इसको एक नया नाम दिया, और उसका नाम क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और लेटर में इसको क्या कन्वर्ट कर दिया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये रिवर के बैंक के किनारे होने की वजह से इसको नया नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट मुझे जो लग रहा है, सन ड्राइड और बेक्ड वेयर ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो। जो यहाँ पे ईट का यूज होता था, या तो सन ड्राइड मतलब सनलाइट में उनको ड्राई किया जाता था, या फिर उनको बेक्ड भी करके यूज होता था। बट यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ें मिल पाना थोड़ा बड़ा मुश्किल रहा है। बट हाँ, यू कैन से दैट मे बी देयर इज पॉसिबिलिटीज दैट सन ड्राइड एंड बेक्ड स्टैंडर्ड रेशियो brick used in Indus Valley civilizations। और एक चीज़ जो ड्रेनेज जो सिस्टम था वहाँ पे, ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो यहाँ पे सीवेज यूवेज था, वो ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड था। किसी हिस्टोरियन ने कमेंट करके बोला है कि मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतनी एडवांस है कि क्रीट सिविलाइजेशंस को भी इसमें क्या कर देती है, पीछे छोड़ देती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा ग्रिड पैटर्न ये थोड़ा जानना आपके लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। यहाँ पे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको बताने के लिए नहीं है। सिटाडेल, इसमें ग्रेट बाथ, वही चीज़ें जो देखो आप जनरली एक चीज़ देखोगे, ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल, गॉडेस मदर, ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, मोहनजोदड़ो से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको भी ऐसे भी करके एक आप गेस वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो ब्रिक बनता था, ईंट जो बनती थी, उसमें किसका यूज होता था, जिप्सम और मोटार का यूज़ किया जाता था। ठीक है, बाकी इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। ब्यूरियल्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं। लग्जरीज, ये पॉट है जो किसके लिए यूज होता था, ड्रिंकिंग एल्कोहलिक कंजप्शन के लिए इसका यूज करते थे। एक चीज़ और इसमें मिलेगा, मे बी होगा तो नहीं, पोरस करके, हाँ ये कुछ फिगर्स हैं, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। सम ऑफ दीज कैन बी सीन इन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली और साइट एंड लोथल। ठीक है, ये आपकी टेराकोटा फिगरिन है, आप इसको भी देख सकते हो कि ऊपर ये कुछ अलग टाइप का एक स्ट्रक्चर है ना, और यहाँ पे हैंड है इसका, इसके वेस्ट पे, तो इसको भी आप देख लीजिए। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे कुछ आप एक चीज़ देख सकते हैं, देयर इज एविडेंस इन खेतरी एरिया जो है ये राजस्थान में है, और यहाँ पे कॉपर माइनिंग ज़्यादा होती है। यहाँ पे कॉपर के कुछ कॉइन्स भी मिले हैं जो गुप्ता पीरियड से भी रिलेटेड हैं। बट आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, खेतड़ी और जावर, ये जो दो प्लेसेस हैं यहाँ पे कॉपर माइंस हैं, वही कहाँ पे हैं, राजस्थान में। दीज आर सम प्लेसेस वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल कम्युनिकेट एंड डूइंग ट्रेड विद दीज प्लेसेस, लाइक मागान, ये आप देख सकते हो यूएई में है, दिलमुन और तुरान, मेसोपोटामिया। ठीक है, सुतकांगे डोर तो आज के समय में आप देखोगे तो ये बलूचिस्तान साइड में है, पाकिस्तान में, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये आप ये जार देख रहे हैं, मे बी ये हड़प्पन जार फाउंड इन ओमान, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ये कुछ सील्स हैं जो
सिलेंड्रिकल अच्छा, यहाँ पे मे बी देर इज पॉसिबिलिटी इज दैट इट कैन बी पास इन टू द एग्जाम दैट सील्स कैन बी, है ना, इन सिलेंडर सील्स, है ना, कुछ सिलेंड्रिकल सील्स होंगे, कुछ स्पेरिकल होंगे, कुछ रेक्टेंगल होंगे। तो अगर ऐसा कुछ देता है कि सील कैन बी लाइक दिस वन, तो मे बी देर कैन बी पॉसिबिलिटीज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेसोपोटामियन मिथ था कि मेलुआ में योर बर्ड बी द हजा बर्ड एंड मे इट्स कॉल बी हर्ड इन रॉयल पैलेस। हजा बर्ड जो होता है, हज बर्ड, मेलुआ इसको भी बोला जा सकता है, और कुछ लोग इसको रिफ़र किए हैं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की। हज बर्ड जो होता है उसको किसको बोलते हैं? पिकाक को बोलते हैं, मोर को बोलते हैं। लेकिन यार इस बार यूपीएससी ने थोड़ा एक तरीके से क्वेश्चन बना दिया, पिकाक टुरुंटुला करके। टुरुंटुला जो होता है स्पाइडर होता है, और ये कार्निवोरस होता है। जंगल में क्या मिलेगा आपको? मतलब जाहिर सी बात है, अगर मकड़ी है जाला बुन रही है तो वो तो घास फूस तो खाएगी नहीं, खाएगी तो क्या, कुछ नॉन वेजिटेरियन टाइप की। तो यही चीज़ है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ये देखिए सिलेंड्रिकल टाइप सील डिपेक्टिंग बोट, है ना। ये क्वेश्चन में भी हो सकता है। ये बोट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोट का स्ट्रक्चर बनाया है और बीच में कुछ ऐसा कुछ करके। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वहाँ पे स्क्रिप्ट मिले हैं या फिर सील्स मिले हैं वो किस टाइप के हैं, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है या रेक्टेंगल है। तो आप इस सब चीज़ों से घबराना नहीं है, आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और आराम से इसको सॉल्व करना है। सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ें थी, काफ़ी यूनिक चीज़ थी कि जो सील्स थे उनका एक वेट भी होता था और वो प्रॉपर माइनर में होती थी। ऐसा नहीं कि आप उसको किसी भी एंगल में किसी भी तरीके से उसको कर दो, उसके लिए प्रॉपर एक तरीका होता था। वेट का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब जो बाइनरी सिस्टम के बेसिस पे था, 1 2 4 8 16 32 64 18 128 256 ऐसा करके, ठीक है। मतलब एक रेशियो को फॉलो करते थे, वाइल द हायर डोमिनेशन फॉलोड द डेसिमल सिस्टम्स, है ना। तो इसको भी आप देख सकते हो कि डेसिमल सिस्टम कहाँ पे यूज हो रहा है, डिनोमिनेशन ऑफ बाइनरी सिस्टम कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो पैलेस थे, मतलब किंग्स एंड क्वींस के, तो लोअर सिटाडेल और लोअर टाउन और सिटाडेल में करके कन्वर्ट थे, है ना। आप इसको भी ऐसे कह सकते हैं। ये प्रीस्ट किंग, यहाँ पे इसका भी मतलब इनका भी एक मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ठीक है। ये आप इसको देख सकते हैं, ये प्रीस्ट किंग करके है कि आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं पता लगा रहे हैं कि प्रीस्ट किंग है या प्रीस्ट है या किंग है, क्या है। थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन सा है क्योंकि चीज़ें समझ के परे हैं। यहाँ पे कुछ सोर्सेज मिले हैं कि एक डेड मैन लेन करके है, जिसमें से 3 से 4 फीट मतलब है कि उसमें कुछ चीज़ें मिली हैं, जिसमें से ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम करते हैं कि कुछ लोग भाग रहे थे तो पीछे से किसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और एक्सेज इंसर्ट के थ्रू उनके हेड को क्या कर दिया, चॉप अप कर दिया, ठीक है। और कुछ उनके बैक पे मतलब पीठ के पीछे क्या कुछ ऊंड मतलब कुछ निशान भी हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं। ऋग्वेदा मेंशन पुरुष मीनिंग रैम्पर्ट, फोर्ट आर स्ट्रांग होल्ड। इंद्रा द आयरन वार गॉड इज कॉल्ड पुरंदरा। अच्छा, इंद्र को पुरंदर बोला जाता है तो आप जानते ही हो, फोर्ट डिस्ट्रॉयर। पुरंदर का मतलब क्या होता है? जो किलों को नष्ट करता है, इन सब चीज़ों को। अलिंगम तो कनिंगम तो कन्फ्यूज ही था, बाकी चीज़ें इसमें कुछ है नहीं। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। न्यू ओल्ड सिविलाइजेशंस, हमने पहले इसके बारे में बता दिया है। टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ खास नहीं है। प्रॉब्लम्स ऑफ पाइसिंग टुगेदर द पास्ट, क्लासीफाइंग फाइंड्स, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आप इसको देख सकते हैं। प्रोटोसिवा का एक सील मिला है
जिसमें से डियर है, बफेलो है, टाइगर है, राइनोसोरस। इसको आप ट्राइब करके याद कर सकते हो। इसका जो न्यूमेरिक्स मैंने बनाया था, ट्राइब, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो और एलिफेंट, है ना। और डियर भी हैं दो नीचे, और ये बफेलो पे बैठा हुआ, मतलब ऐसा करके, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे एक निमोनी बना सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन से आप एक देख सकते हैं, समनाज, है ना, हु आर समनाज लाइक समथिंग, है ना, जो हीलिंग प्रैक्टिसेस को, मैजिक और हीलिंग प्रैक्टिसेस को करते हैं, और टॉकिंग टू अदर वर्ड्स, है ना, मतलब जो जादूगर टाइप ऐसा करके जो होते हैं, उनको समनाज बोलते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा था नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टोन एज जो था, सबसे पहले स्टोन एज ही था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले। तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। फिर पैलियोलिथिक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। फिर इसके बाद आता है मेजोलिथिक और नियोलिथिक। नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक मिला के एक नया एज जो स्टार्ट होता है लास्ट में, जिसको प्री हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं, प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन या प्री हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। और लेटर हड़प्पन कल्चर बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप इसमें नहीं कर सकते। मे भी, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसमें कुछ और ऐसा होता है तो मैं आपको आगे बताता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।